is 5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery. Clear the tower. Houston now controlling. Roll program. Roger, roll, Discovery. Namaste friends. Today we are taking a numericals of this chapter, that is the force and the momentum. Now you see here the mass of a cannon is given 500 kilogram. Cannon जो है उसका mass जो है हमको दिया है, how much it is? 500 kilogram. And the recoil, it recoils with the speed of the 0.25 meter per second. And we have to find out the momentum of the cannon. जो गोली जो है उसका हमको मोमेंटम जो है निकालना है. Now, while solving such a type of the question, you was already given the instruction that you write all the given quantities at first. You write the given quantities. At first, we have given mass of cannon, it is equal to the 500 kilogram that we have given. ये हमको दिया है. And we have given the recoil speed. हमको उन्होंने recoil speed भी दी है. Is given, it is equal to 0.25 meter per second. And the momentum we have to calculate. हमको निकालना है, momentum निकालना है. We have to calculate. For momentum, we have a formula. Momentum के लिए हमारे पास में formula है. That is the P is equal to mv. Into V, place the values all these. As for you see that we have given all these. It is mass is given and the recoil speed is given. Mass दिया है और recoil speed उन्होंने दी है. Either you convert kilogram into gram or you can also keep it. Or answer that will come in that the kilogram meter per second. Now we have given the mass. It is equal to 500 gram. You keep here the values. इसकी वाली वैल्यू हमने यहाँ रखी. After that, speed is given. It is 0.25. Now you make the multiplication. इसके साथ में यदि आप multiplication करेंगे, then at that time you will get this type of the answer. 125 किलोग्राम इसका यूनिट है. मास का किलोग्राम, वेलोसिटी जो है, रिकॉइल स्पीड जो है उसका है यूनिट मीटर पर सेकंड. सो दिस इज आवर आंसर. ये हमने अभी मोमेंटम जो है ये क्या निकाला है. नाउ यू सी द अनदर टाइप ऑफ द क्वेश्चन. हाउ इट इज. एन ऑब्जेक्ट मूव द 18 मीटर इन द फर्स्ट 3 सेकंड. पहले 3 सेकंड में क्या हो रहा है, 18 मीटर डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट जो है वो क्या मूव हो रहा है. 22 मीटर इन द नेक्स्ट 3 सेकंड. 22 मीटर दूसरे 3 सेकंड में कवर कर रहा है वो. एंड 14 मीटर डिस्टेंस इट इज कवर्ड इन दैट द लास्ट 3 सेकंड. लास्ट 3 सेकंड में ये वाला डिस्टेंस जो है वो क्या कवर कर रहा है. नाउ यू सी हियर, यू राइट
ऑल द गिवन क्वांटिटीज। पहले सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट ऑल द गिवन क्वांटिटीज। तो यू राइट हियर वी आर गिवन इट इज S1। पहला वाला जो डिस्टेंस जो है कितना है, इट इज 18 मीटर। पहला वाला डिस्टेंस कवर किया हुआ हमने उसको माना है 18 मीटर। आफ्टर दैट उसको टाइम लगा था 18 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए, उसको टाइम कितना लगा है देखिए, इट इज हाउ मच 3 सेकंड। आफ्टर दैट दूसरा वाला जो डिस्टेंस है S2, उसने कितना कवर किया देखिए S2, इट इज 22 मीटर। उसको टाइम कितना लगा है देखिए T2, इट रिक्वायर्स हाउ मच सेकंड, 3 सेकंड। एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट S3, तीसरा वाला जो डिस्टेंस कवर किया उसने कितना किया है देखिए, हाउ मच इट इज इक्वल टू द 14 मीटर। And time required for covering this distance, it is equal to the how much, it is also equal to the 3 second। उतना ही डिस्टेंस उसको लगा है। Now we have to find out average speed। उन्होंने क्या निकालने के लिए बताया देखिए, we have to find out the average speed। हमको average speed जो है क्या निकालना है। So we have to find out average speed। ये हमको निकालना है। नाउ फॉर दैट वी हैव फॉर्मूला, हमारे पास में फॉर्मूला है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। जो हमको एवरेज स्पीड की जो डेफिनेशन हमने पहले पढ़े थे उसमें ये हमने पढ़ाया। यू कैन सी दैट वीडियो, इट इज द टोटल टाइम टेकन। So total distance traveled divided by total time taken। Now you keep the values here। जो भी कुछ हमने लिया है अभी देखिए। So it is total distance S1 plus S2 plus S3, S1 plus S2 plus S3 divided by total time taken T1 plus T2 plus T3 is equal to 18 meter plus S2, it is the 22 meter plus S3, it is the 14 meter divided by time 3 plus 3 plus 3, it is equal to, ये इसका आ जाएगा 54 divided by 9, it is equal to the 6 meter per second। उसकी स्पीड कितना होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। देयरफॉर सिक्स मीटर पर सेकंड। Now you see another type of question। कैसा है देखिए, अ बुलेट हैविंग अ मास ऑफ 10 ग्राम। एक बुलेट है, उसका मास दिया है हमको, इट इज हाउ मच, इट इज इक्वल टू 10 ग्राम एंड मूविंग विथ द स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड। इसी स्पीड से ये बुलेट जो है क्या मूव हो रही है एंड
द थिक वुडन प्लैंक ऑफ द मास 90 ग्राम। वुडन प्लैंक पे ये गोली क्या है हमने मारी है वहां बंदूक से। पेनिट्रेट्स द थिक वुडन प्लैंक्स ऑफ द 90 ग्राम। प्लैंक वॉज इनिशियली एट द रेस्ट। बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द प्लैंक एंड बोथ मूव टुगेदर। एक जो गोली जो है बुलेट जो है हमने फेंक के मारी है, आइदर बाय विद द हेल्प ऑफ द गन और विद द हैंड आल्सो। इसी स्पीड से हमने फेंकी है उसको। इसको कहां तरफ फेंकी हमने? इट इज टुवर्ड द वुडन प्लैंक। लकड़ी का एक प्लैंक जो है वुडन प्लैंक इज देयर, उस पे ये भेजिए फेंकिए। उस तरफ फेंकने के बाद में क्या हो गया? प्लैंक जो है वुडन प्लैंक जो है और गोली जो है दोनों भी कैसे हो गए? मूव हो गए। डिटरमाइन देयर वेलोसिटी। उनकी वेलोसिटी जो हमको क्या निकालनी है। नाउ यू सी हियर, you write all the given quantities. While solving the question, you have to write all the given quantities. We have given M1, that is the mass of the bullet. It is equal to 10 gram. After that, the 10 gram is given. Now you convert this into the kilogram. हमको क्या करना है? उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। you convert into the kilogram. किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 into 1000 ग्राम is equal to 1 kilogram means 1000 means 10 to the power 3 ग्राम is equal to 1 kilogram. तो हमको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम? We will divide by the 1000 into 1000 आ जाएगा आपका किलोग्राम। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम 10 into 10 to the power 1000 मीन फॉर्स 1000 जो है इसका मतलब क्या है? इट इज 10 to the power 3। नीचे में है तो क्या ऊपर में आने के बाद में -3 किलोग्राम। नाउ आफ्टर दैट द इनिशियल वेलोसिटी u1, इनिशियल वेलोसिटी it is given 1.5 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी किसकी? बुलेट की। आफ्टर दैट M2 दिया है हमको मास ऑफ प्लैंक it is how much? It is 90 gram. You also convert into the kilogram. So 90 into किलोग्राम, ग्राम टू किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 to the power -3 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैंक, जो वुडन प्लैंक जो है उसकी पहले क्या था? वुडन प्लैंक ये इट वाज एट द रेस्ट पोजीशन, लेकिन जैसे गोली लगेंगी उसको क्या हो जाएगा? बोथ विल मूव and it will come in the motion. So initial velocity it was the 0 meter per second and we have to find out v1 is equal to v2। दोनों की भी स्पीड वेलोसिटी जो है हमको निकालना है क्योंकि दोनों भी है। दोनों की वेलोसिटी हम क्या करेंगे? ये दिया है u2 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि प्लैंक जो था कैसा था? ये इट वॉज द एट रेस्ट पे था तो इनिशियल वेलोसिटी कैसे रहेंगी? 0 रहेंगी। उसके बाद में दोनों भी जैसे गोली लगेंगी प्लैंक को क्या हो जाएगा? गोली और प्लैंक जो है वुडन प्लैंक बोथ विल कम इन दैट द मोशन और उसकी वेलोसिटी जो है हमको निकालनी है। नाउ वी हैव अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। by law of
क्या बताता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. मीन्स इट इज m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. इसमें सब वैल्यू रख देंगे हम. एंड वी हैव u1 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड. u1 कैसा है हमारा? 0 मीटर पर सेकंड है. v1 इज इक्वल टू v2. दोनों को भी वेलोसिटी कैसे रहेंगी? सेम रहेंगी. सो इट विल बी द, वी आर कंसिडरिंग इट एज द v. दोनों की वेलोसिटी सेम है तो हमने क्या लिया? उसको v लिया. देयरफॉर ये वाला इक्वेशन हमारा इस प्रकार से चेंज होगा. m1 u1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू स्मॉल v. इसकी वाली वैल्यू हमको निकालनी है. Therefore, V is equal to m1 u1 divided by m1 plus m2 into v. Now you place the value. m1 it was the 10 into 10 to the power minus 3 kilogram. Into 1.5 meter per second. After that m1 plus m2. What is m1? देखिए m1 दिया है हमको 10 into 10 to the power minus 3 plus 90 into 10 to the power minus 3 kilogram. ये v नहीं आएगा, v इधर चला गया. ये we have to find out the value of v. So it will be his, and you solve this. After solving you will get in this type of the values. 10 into 1.5 मल्टीप्लाई कीजिए. ये 10 इंटू 1.5 और 10 टू द पावर माइनस 3, 10 टू द पावर माइनस 3 कॉमन निकालने के बाद ये कैंसिल हो जाएंगे. देयरफॉर इट इज डिवाइडेड बाय 1100 मीटर पर सेकंड एंड इट विल बी 0.15 मीटर पर सेकंड. So it is the velocity of both. दोनों की भी वेलोसिटी ये रहेंगी.